Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So let's continue cost of quality, that is chapter number 2.2. एंड इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मैनेजिंग क्वालिटी इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, राइट? एंड नाउ इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, राइट? एंड ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर है. मॉड्यूल नंबर 2 इज ऑल अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट? एंड ये जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इस चैप्टर के अंदर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी शॉर्ट नोट्स टाइप, राइट? सो वी कैन स्किप एटलीस्ट मॉड्यूल नंबर 1 and module number 2 of strategic cost management according to new syllabus. Okay, so let's start with the meaning of cost of quality and the different stages and different points which are included. What are the different types, what are the category of cost necessary for achieving high quality, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे each and every points very briefly, right? So cost of quality. The reason quality has gained such prominence is that organizations have gained an understanding of the high cost of poor quality. So quality affects all aspects of the organization and has dramatic cost implications. कैसे? Now the most obvious consequence occurs when poor quality creates dissatisfied customers and eventually leads to loss of business. So quality is most important priority because quality के ऊपर डिपेंड करता है रेवेन्यू अप्रेजल, राइट? एंड customer satisfaction and growth of the business. So however, quality has many other costs which can be divided into two categories. The first category consists of costs which are necessary for achieving high quality, which are called quality control cost, right? And these are two types. One is prevention cost and appraisal cost. Prevention cost and appraisal cost. The second category जो है consist of the cost consequences of poor quality, which are called quality failure cost. Quality failure cost. These include external failure cost and internal failure cost. External failure cost and internal failure cost. The first two costs are incurred in the hope of preventing the second two. So prevention cost क्या है फिर? See, prevention cost are all costs incurred in the process of preventing poor quality from occurring. Means prevention costs are the expenses a company incurs to prevent defect or failures from occurring in the first place. So prevention cost क्या है? ये जो cost है ये one type of expenses है जो कि पहले incur किया जाता है before to prevent defect or failures from occurring in the first place. So prevention cost is very important. And what are the examples of prevention cost? Prevention cost का example क्या है ना? Quality training, quality circles, statistical process control activities, system development for prevention and quality improvement. So quality training क्या है? इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक्स के अंदर, बट क्वालिटी ट्रेनिंग क्या है ना? दिस इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग एम्प्लॉइज ऑन हाउ टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन देयर वर्क. सो अगर क्वालिटी ट्रेनिंग स्ट्रांग होगा तो एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस, राइट? तो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा एंड इफेक्टिव क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगा, राइट? सो क्वालिटी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग एम्प्लॉइज ऑन हाउ टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन देयर वर्क. एंड क्वालिटी सर्कल्स. सो क्वालिटी सर्कल्स क्या है ना? दीज आर ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स. दिस इज कॉल्ड क्वालिटी सर्कल्स. ये एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं who meet regularly to identify and solve quality related problems, right? So that कि जो weaknesses है वो सर्कुलेट हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. सो क्वालिटी सर्कल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ कॉस्ट.
प्रिवेंशन कॉस्ट में क्वालिटी सर्कल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है ना? दिस इज वन टाइप ऑफ टेक्निक्स which used to monitor and control processes to ensure they remain within desired quality parameters. They are remain within the desired quality parameters, right? This is called statistical process control activities. Then system development for prevention. System development for prevention ये क्या है ना? Investing in systems or processes that are designed to prevent defects, right? So जो system जो processes है जो कि help कर रहा है to identify defects या फिर प्रिवेंट डिफेक्ट्स, वो सिस्टम के ऊपर जो एक्सपेंसेस इनकर किया जा रहा है उसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट फॉर प्रिवेंशन, राइट. देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट. क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है ना? क्वालिटी इंप्रूवमेंट मीन्स इनिशिएटिव्स एम्ड एट कंटिन्यूसली इंप्रूविंग प्रोसेसेस टू एनहेंस क्वालिटी एंड रिड्यूस डिफेक्ट्स ओवर टाइम. सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है? इनिशिएटिव्स aimed at continuously improving processes to enhance quality and reduce defects over time, right? ये है प्रिवेंशन कॉस्ट. प्रिवेंशन कॉस्ट का सब के सब जितने भी सारे एग्जाम्पल्स है वो सब याद होना चाहिए. इसमें एमसीक्यू आ सकता है, राइट. एमसीक्यू आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है. देन कम्स टू अप्रेजल कॉस्ट. अप्रेजल कॉस्ट. सो व्हाट इज अप्रेजल कॉस्ट? What is appraisal cost? See, appraisal cost is nothing, but you can say appraisal costs are those costs which are associated with assessing the quality of products or processes to identify any defects, right? Appraisal cost क्या है? This is one type of cost which is associated with assessing the quality of products or processes to identify any defect. For example, testing and inspecting materials, final product testing and inspecting, work in progress testing and inspecting, package inspection, and depreciation of testing equipment. Depreciation of testing equipment, right? So, appraisal cost क्या है? Appraisal costs are associated with assessing the quality. Assessing the quality of product or processes, right? Appraisal cost क्या है? Assessing the quality of product or processes. So appraisal costs are associated with assessing the quality of product or processes to identify any defect. For example, testing and inspecting materials. So testing and inspecting materials क्या है ना? Checking raw materials or components for quality before they are used in production. पहले हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स which require to make a product, वो सब थिंग्स को पहले चेकिंग करना है सो दैट कि जो डिफेक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, राइट. सो चेकिंग रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स for quality before they are used in production. So first and most important essential point is पहले टेस्टिंग करना है, इंस्पेक्ट करना है. जो रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है वो सब मतलब डिफेक्ट तो नहीं है, राइट. सो पहले इनिशियल चेकिंग होना चाहिए. देन फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग. सो फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग क्या है ना? इंस्पेक्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट to ensure that they meet quality standards before they are shipped to customers. कस्टमर को पहले शिफ्ट करने से पहले क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ, ensure that they meet quality standards before they are shipped to customer. कस्टमर्स को शिफ्ट होने से पहले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग, राइट. देन
WIP टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग। ये क्या है? WIP टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग ये क्या है ना? वर्क इन प्रोग्रेस टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग, जो कि है चेकिंग प्रोडक्ट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू कैच एंड करेक्ट एनी डिफेक्ट ईयरली। ये भी वही सेम टू सेम क्या है ना? ईयरली ऑल द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डिफरेंट फेजेस है, जो डिफरेंट स्टेज है, वहाँ पर चेक करना चाहिए, सो दैट कि जो डिफेक्ट है वो ईयरली हमको पता चल सके, राइट? सो चेकिंग प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू कैच एंड करेक्ट एनी डिफेक्ट्स ईयरली, that is called work in progress testing and inspecting. Clear? So now package inspection. अब package inspection क्या है ना? ensuring that product packaging meets quality standards and is free from defect. पहले तो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए एंड द प्रोडक्ट ऑल्सो मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, दैट इज कॉल्ड पैकेज इंस्पेक्शन। पैकेज इंस्पेक्शन करने से पहले इंश्योर होना चाहिए दैट द प्रोडक्ट पैकेजिंग मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, राइट? देन डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट। ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या है ना? अकॉर्डिंग टू accounting for the cost of equipment used for quality testing over its useful life accounts करना है जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो कि यूज्ड हुआ है फॉर क्वालिटी टेस्टिंग, राइट, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट। जो टेस्टिंग इक्विपमेंट यूज हो रहा है इन क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएशन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, तो बोथ ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट का अकाउंटिंग किया जाता है एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर क्वालिटी टेस्टिंग ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट। नाउ कम्स टू इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट क्या है? as we already discussed that internal failure costs are incurred when defects are discovered before products are delivered to customers, leading to rework or scrap, right? Internal failure cost कब होता है? when defects are discovered before products are delivered to customer. कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले अगर पता चल सके कि ये सब डिफेक्ट है प्रोडक्ट के अंदर, सो दैट हमको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ इंटरनल फेल्योर कास्ट है जिसके वजह से हमको फिर से रीवर्क करना पड़े या फिर स्क्रैप को और एक बार मतलब रीवर्क करके फिर से हमको प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है एंड कस्टमर को सेंड करना है, राइट? सो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट इज those costs which are incurred when defects are discovered before products are delivered to customer, and for which this type of oversights led into rework or scrap, that is called internal failure cost. This type of cost incurred before products are delivered to customer, leading to rework or scrap, right? And the different examples of internal failure costs are cost of scrap, that is net realization, cost of spoilage, cost of rework, downtime due to defect in quality, and retesting, right? So cost of scrap ये क्या है? Cost of scrap means the expenses which are associated with unusable or defective product that must be discarded, जो कॉस्ट डिफेक्टिव है, अनयूजेबल है, वो सब डिस्कार्डेड होना चाहिए। एंड कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज ये क्या है?
Cost of spoilage means loss incurred due to defect or error in the production process. Losses incurred due to डिफेक्ट्स और एरर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो डिफेक्ट हो रहा है उसके वजह से जो लॉस इनकर हो रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज. कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज, राइट. देन कॉस्ट ऑफ रीवर्क. अब कॉस्ट ऑफ रीवर्क क्या है? कॉस्ट ऑफ रीवर्क क्या है ना? एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन करेक्टिंग डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस के समय जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं टू करेक्ट सच डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रीवर्क. कॉस्ट ऑफ रीवर्क मीन्स एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन करेक्टिंग डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. देन आता है डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी. ऑफ डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी, ये क्या है ना? लॉस्ट प्रोडक्टिविटी और यू कैन से ऑपरेशनल डिसरप्शंस caused by quality issues. Caused by quality issues is called downtime due to quality defect. Quality defect के वजह से जो प्रोडक्टिविटी का लॉस्ट हो रहा है या फिर जो ऑपरेशनल डिसरप्शंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डाउन टाइम ड्यू टू क्वालिटी डिफेक्ट्स. डाउन टाइम ड्यू टू क्वालिटी डिफेक्ट इन क्वालिटी, राइट. देन रीटेस्टिंग. रीटेस्टिंग क्या है? ये एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है आफ्टर डिफेक्ट्स हैव बीन करेक्टेड टू एंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट. दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग एक्सपेंसेस, जिसमें कि एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है आफ्टर डिफेक्ट्स हैव बीन करेक्टेड टू एंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट. जो डिफेक्ट प्रोडक्ट को रीमेकिंग किया गया है, रीवर्क किया गया है, फिर से ये कोई डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो वो सब चेक करने के लिए जो रीटेस्टिंग एक्सपेंसेस हो रहा है उसको कहते हैं जो इंटरनल फेल्योर कॉस्ट हुआ था. तो जब हम लोग उसको रीवर्क किए तो वहाँ पर अगर कोई डिफेक्ट हो गया है तो उसके लिए रीटेस्टिंग किया जाता है. दैट इज एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायर्ड आफ्टर डिफेक्ट्स हैव बीन करेक्टेड टू एंश्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट और नॉट. दैट इज कॉल्ड इंटरनल फेल्योर कॉस्ट. नाउ कम्स टू एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट. अब एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट क्या है? इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के टाइम क्या होता है ना? जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिलीवर जो हो रहा है कस्टमर्स को, तो पहले हमको पता चल जाता है कि डिफेक्ट अगर नहीं तो हुआ है, अगर कुछ डिफेक्ट हुआ है वो पहले पता चल जाता है इन इंटरनल फेल्योर कॉस्ट. बट इन एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट यहाँ पर क्या होता है ना? External failure costs are arised when defects are discovered by customers after products have been delivered. ये डिस्कवर होता है आफ्टर प्रोडक्ट्स have been delivered to customers, right. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट. तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मान लो कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड कंप्लेंट्स, वारंटी रिपेयर्स, लॉस्ट सेल्स एंड वारंटी रिप्लेसमेंट. ये सब कंपनी के अंदर होता रहता है. वारंटी का रिप्लेसमेंट, वारंटी रिपेयर्स, ये वगैरह, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग, ये सब होता है. मान लो सपोज एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहाँ पर ये सब लाइव एग्जाम्पल होता है. कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग एंड वारंटी रिपेयर्स, वारंटी रिप्लेसमेंट. सो कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग क्या है ना? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिपेयरिंग और एड्रेसिंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट ऑलरेडी जो कि डिलीवर हो चुका है कस्टमर को. जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, अगर वो डिलीवर होने के बाद अगर कभी भी कोई इशू डिफेक्ट आया है, कुछ इशू आया है, तो जो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रहा है टू रिपेयरिंग और एड्रेसिंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट व्हिच आर ऑलरेडी डिलीवर्ड टू कस्टमर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग. देन कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स. कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स मीन्स व्हाट? मीन्स सिंपली रिसोर्सेस एक्सपेंडेड इन एड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट प्रोडक्ट डिफेक्ट. अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आया है एंड कस्टमर ने कंप्लेंट किया है, सो इन दैट केस रिसोर्स एक्सपेंड होना चाहिए टू एड्रेस सच कस्टमर कंप्लेंट्स, राइट.
about such type of product defect, that is called cost of handling complaints. कस्टमर का जो कंप्लेंट को अच्छे से हैंडलिंग करना है, रिसोर्सेस एक्सपेंडेड करना है टू एड्रेसिंग सच इश्यूज, एंड देन जो करेक्टिव एक्शन है वो सब आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स। देन आता है आपका वारंटी रिपेयर्स। अब वारंटी रिपेयर्स तो हम लोगों को पता है कि कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड विथ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट कवर्ड अंडर वारंटी एग्रीमेंट। वारंटी एग्रीमेंट के अंदर 1 ईयर 2 ईयर जो दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो ईयर के अंदर जो कॉस्ट एसोसिएटेड है रिपेयर करने का वो सब किया जाएगा या फिर डिफेक्ट प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड वारंटी रिपेयर्स। देन लॉस्ट सेल्स। अब लॉस्ट सेल्स क्या है? लॉस्ट सेल्स मीन्स रेवेन्यू लॉस्ट ड्यू टू dissatisfied customers, या फिर यू कैन से दैट नेगेटिव रेप्यूटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट। अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट के वजह से अगर नेगेटिव रेप्यूटेशन हो रहा है या फिर रेवेन्यू लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स, तो उसको कहते हैं लॉस्ट सेल्स, राइट। देन वारंटी रिप्लेसमेंट। अब वारंटी रिप्लेसमेंट क्या है? वारंटी रिप्लेसमेंट मीन्स हम लोगों को अच्छे से पता है वारंटी के बारे में कि प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विथ न्यू प्रोडक्ट और पार्ट्स टू रिप्लेस डिफेक्टिव वन कवर्ड अंडर वारंटी। वारंटी के अंदर अगर कवर्ड है कि अगर प्रोडक्ट कुछ डिफेक्ट हो जाए तो फिर न्यू प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो देन प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विथ न्यू प्रोडक्ट और पार्ट्स टू रिप्लेस डिफेक्टिव वंस कवर्ड अंडर द वारंटी, राइट। सो बहुत सिंपल है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के समय ये सब जो कॉस्ट है वो सब याद होना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स, वारंटी रिपेयर्स, लॉस्ट सेल्स एंड वारंटी रिप्लेसमेंट, राइट। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ कॉस्ट हेल्प्स कंपनी to manage quality more effectively by allocating resources to prevention activities, reducing appraisal efforts, and minimizing internal failures and mitigating external failure cost. Right? So this is it all about cost of quality. आपको शॉर्टकट में लिखना है प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है, अप्रेजल कॉस्ट क्या है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है, राइट, एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। एंड यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है या फिर एमसीक्यू आ सकता है, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको स्किप नहीं करना चाहिए। बट फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।